Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nazir. Today I'm going to discuss a very important data structure known as the Q data structure. First of all, we will discuss some important features about the Q data structure. Q is a linear data structure with operates first in, first out, last in, first out manners. You can see in the diagram there are multiple cars, and if you see in the toll plaza, the car which is at the head will exit first, then the number second, then the number third. So this mechanism is known as the first in, first out. It is named queue as its behavior like the real world queue examples. Queue lines of cars, single lane queue of people waiting for the food counter. You can see another example. If there are multiple people in the queue and the people that are ahead of queue will exit first, will served first. This is known as first in, first out. It's also known as last in, last out. The people that is at the last of the queue will exit at the last. So we will discuss the different operations of the queue. Before seeing this implementation, first of all, we have a like array. You can see if we want to implement the queue in the array, so let's suppose the array have size equal to 5. The first is 0 index, first index, second index, third index, and fourth index. What will happen when we implement array queue in an array? So when we enter the first element, the element will be enter at here, and the second element will be entered at here, and so on. The third element is here, and fifth element is here. Okay, and this one is the last element that is going to insert in the array. If we are implementing as a queue, so when we dequeue a number, the number will be dequeued this number will be removed from the queue. So this space will be empty, and if we another operation, if we apply another operation of the dequeue, so this operation, this element will also remove, and so on. If we apply dequeue, this element will be removed. So सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम ये कुछ ऑपरेशंस एन क्यू देख लेते हैं, एन क्यू और डी क्यू किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। तो एन क्यू के अंदर हमने इस फुल एक बुलियन फंक्शंस इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, इसको अब यहाँ पर देखने से पहले हम इसमें इज एम्प्टी और इज फुल का देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। इज फुल मीन व्हेन वी want to see either there is space available in the queue or not. अगर स्पेस अवेलेबल होगी देन हम एन क्यू कर सकेंगे, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो हमारा एन क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हाउ कैन वी फाइंड द स्पेस इज अवेलेबल इन द क्यू और नॉट? तो ये इज फुल ऑपरेशन हमारे पास जो फंक्शन या मेथड है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, इसमें हमने इनिशियलाइज किससे किया हुआ है, रियर और फ्रंट को, ये इसकी मखसूस वैल्यूज होंगी। और इसमें हम ये कह रहे हैं इफ रियर इज डबल इक्वल टू ए आर साइज ऑफ ए आर माइनस वन। तो अगर रियर, चूंकि रियर स्टार्ट हमारे पास जो इंडेक्सिंग है ये 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारे पास जो एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी वो 4 तक होगी। दैट्स वाई हमने कहा है कि अगर रियर की वैल्यू दैट इज 4, अगर ये 4 हो जाती है और साइज हमारे पास है 5 और उसमें से -1 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4। और जब ये रियर यहाँ पर पहुंचेगा, हम जब एन क्यू करते करते हम रियर को लास्ट पे ले आएंगे, इट मींस देयर इज नो स्पेस अवेलेबल कि अब हम मजीद कोई एन क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो द इज फुल फंक्शन विल होल्ड ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा जब ये हमारे पास ये सिनेरियो आ जाएगा
कि रियर इक्वल टू साइज ऑफ एरे -1, यानी कि 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर ये रियर की वैल्यू कहीं जीरो पे है या इससे कहीं 4 से पीछे है, इट मींस देयर इज अ स्पेस अवेलेबल कि आप वहां पर एनक्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एल्स में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होगी। सो वापस हम आते हैं अपने एनक्यू की जानिब। एनक्यू में हमारे पास कोई आर्गुमेंट वैल्यू दी जाएगी जो हम मेन फंक्शन से, जब ये फंक्शन हमारे पास, जब मेथड जब ये कॉल होगा तो मेन से हमें एक वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर हमारे पास प्लेस होगी बाय एन आर्गुमेंट। उसके बाद इस फुल अगर तो ट्रू है तो वो रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा? आपको बता देगा कि हमारे पास ये क्यू फुल हो चुकी है। और एल्स में हम क्या कर देंगे, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एल्स इफ में अगर वो एम्प्टी है, यानी कि आप एनक्यू करने जा रहे हैं और हमारे पास जो क्यू है अगर वो एम्प्टी है, तो रियर और फ्रंट को हम पहले जीरो करेंगे। देखें हमने इसके अंदर फ्रंट और रियर को -1 दिखाया हुआ है, यानी कि फ्रंट भी अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा और रियर भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा अगर हमारे पास एरे एम्प्टी है तो। अच्छा, तो अगर ये हमारे पास इज एम्प्टी ट्रू है तो डेफिनेटली वैल्यूज, और ये ट्रू कब होगी? जब फ्रंट की वैल्यू -1 और रियर की वैल्यू -1 होगी, देन ये हमें रिटर्न ट्रू करेगा। अच्छा, अगर तो हमारे पास इज फुल ट्रू नहीं है तो एल्स में हम क्या करेंगे? रियर और फ्रंट को जो पहले -1 है इनको हम पॉइंट कर देंगे इस पोजीशन पे, यानी कि रियर भी यहाँ पर आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, और फ्रंट भी, यानी कि रियर भी इसको पॉइंट कर रहा होगा और फ्रंट भी इसको पॉइंट कर रहा होगा। यानी कि फ्रंट और रियर बेसिकली ये दो पॉइंटर्स हैं जो कि आगे मूव करेंगे। पर्टिकुलरली रियर मूव करेगा और फ्रंट जो है वो एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा। फ्रंट में बताएगा वो पोजीशन जहां पर आपने इसको इंसर्ट करना होगा। अच्छा, जैसे ही हमारा फर्स्ट एनक्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम रियर को प्लस प्लस कर देंगे। रियर प्लस प्लस हमारा क्यों होगा? बिकॉज हम बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वो पोजीशन जहां पर हमने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब जरा इस क्यू के सिमेंटिक्स की तरफ आ जाएं, तो हमने ये देखा कि इफ कंडीशंस हमारी अगर ट्रू है तो वो रिटर्न कर देगा। एल्स में इफ एम्प्टी अगर ट्रू है, एल्स इफ में इज एम्प्टी जब हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? रियर और फ्रंट को जीरो कर रहे हैं। मीन के फ्रंट और रियर दोनों जीरो इंडेक्स पे आ जाएंगे। अच्छा, एल्स पार्ट में हम जब ये दोनों जीरो नहीं है, फर्ज करें कि इनकी वैल्यू डेफिनेटली फ्रंट कहीं यहाँ पर 1 पे है और रियर कहीं आगे मौजूद है, तो हम रियर को पहले उस पोजीशन पे लाना चाहेंगे जहां पर आप नेक्स्ट नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास एक नंबर इंसर्ट हो चुका है और रियर हमारा यहाँ पर आ चुका है, और रियर बेसिकली यहाँ पर नंबर 7 और 2 मौजूद है, और अस्यूम यहाँ पर अभी नंबर मौजूद नहीं है, तो हम ये चाहेंगे रियर पहले एम्प्टी पोजीशन पे आए जहां पर आप एक न्यू नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई एल्स पार्ट में हम रियर प्लस प्लस कर रहे हैं। और जब हम इस इफ कंडीशन से बाहर आएंगे तो रियर की जो करंट पोजीशन होगी, यानी कि ये वो एम्प्टी पोजीशन होगी रियर की जहां पर अभी रियर मौजूद है। सपोज कि यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो जो वैल्यू हमें एन क्यू से एज ए आर्गुमेंट मिलेगी वो हम उस इंडेक्स एरे के उस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। दिस इज हाउ एन क्यू ऑपरेशन विल एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इसके साथ हम अब डी क्यू ऑपरेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, डी क्यू करते हुए हमने अब ये देखना है कि अगर तो हमारे पास एरे एम्प्टी है तो वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट डी क्यू ऑपरेशन। दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई इज एम्प्टी ऑपरेशन फर्स्ट। कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर इज एम्प्टी ट्रू है तो वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट हमारा नहीं होगा। और जो नंबर हमारे पास एक्स फॉर एग्जांपल हमने जीरो लिया है, दैट इज नथिंग, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। अच्छा, एल्स में हम एल्स इफ में आएंगे। अदरवाइज अगर वो हमारे पास इज एम्प्टी ट्रू नहीं है तो हम फ्रंट इक्वल टू रियर करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है तो हम उस केस में x इक्वल टू ए आर ऑफ फ्रंट मीन्स के जो
फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है, फर्ज करें फ्रंट पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को, इस 7 एलिमेंट को। सो वी वांट टू प्लेस दिस एलिमेंट दैट इज पॉइंटिंग बाय द फ्रंट, उसको हम एक्स में स्टोर कर देंगे। यानी कि इस 7 को जो कि फ्रंट के अंदर मौजूद है, फर्स्ट इंडेक्स में मौजूद है, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है, हम ये चाहेंगे कि इसको हम एक वेरिएबल एक्स के अंदर रख दें और फ्रंट को प्लस प्लस कर दें, यानी कि फ्रंट यहां से आ जाएगा इस पोजीशन पर। मीन्स के इस नंबर को हमने यहां से निकाल कर एक एक्स वेरिएबल में रख दिया और उसके बाद हमने फ्रंट को आगे मूव कर दिया, फ्रंट यहां से इस तरफ आ जाएगा और हम उस नंबर को रिटर्न कर देंगे। मीन्स वी विल रिमूव दिस नंबर और बता देंगे ये नंबर हमारा डी क्यू हो चुका है। दिस इज हाउ एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन विल वर्क एंड वी आल्सो सॉ द इज एम्प्टी एंड इज फुल ऑपरेशन। सो अब हम जरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन के बगैर हम मजीद इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम डेव की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास ये एक एडिटर है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, हम एक क्लास पहले बनाएंगे, उस क्लास का नाम हम क्यू रखेंगे। हमारे पास एक क्यू के नाम की क्लास है होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन हम उसके अंदर इसके प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो बताएंगे। और सबसे पहले हम इसको प्राइवेट मेंबर देख लेते हैं। प्राइवेट मेंबर्स हमारे पास क्या होंगे इसके, तो इसके साथ हम जानते हैं कि सेमी कॉलन ऐड होगा, इंट हमारे पास फ्रंट एक पॉइंटर होगा और इंटीजर टाइप, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट इंटीजर टाइप एरे। सो हमारे पास एक फ्रंट और इसके साथ हम रियर एक पॉइंटर लेंगे और इसी के अंदर हम एक एरे डिक्लेयर कर देंगे ए आर, आर के नाम की, और उसका साइज हम यहाँ पर फर्ज करें इनिशियलाइज कर देते हैं 5, कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसके अब पब्लिक देख लेते हैं कि पब्लिक मेंबर्स इसके क्या होंगे। पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे क्यू। अच्छा, इसमें सेम आपको पता है जब कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं तो हमें वो क्लास नेम हमें सेम देना पड़ता है इसमें। और इसके अंदर अब हम इनिशियलाइज कर देंगे फ्रंट और क्यू की वैल्यू को। इसमें फर्ज करें हम कहते हैं कि फ्रंट अभी हमारे पास होगा -1 पे, और और ये क्यों होगा, बिकॉज फ्रंट अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, और रियर को भी हम रखेंगे -1 पे, बिकॉज रियर भी अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा जब तक ये क्यू हमारे पास एम्प्टी है। अच्छा, एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं वो ये कि हम जो हमारे पास एरे है उसको हम इनिशियली एम्प्टी कर सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि हमने ये जो एरे है इसके अंदर एलिमेंट्स हम स्टोर कर देते हैं 0 0, कि इसमें भी 0 पड़ा हो, इनिशियली कुछ भी ना पड़ा हो, मतलब इट रिप्रेजेंट 0 नंबर, ये भी 0 होगा अगेन, ये भी 0 होगा और ये भी 0 और ये भी 0। इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे इसको 0 से। हम इसकी इनिशियलाइजेशन 0 से कर देंगे, यहाँ पर हम इसकी इसी के अंदर हम एक फॉर लूप की एग्जीक्यूशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉर, इधर टाइप ले लें इसकी वेरिएबल की इंटीजर, और आई को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और आई को लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू 4 कर दें या लेस देन 5 कर दें, इट्स अप टू यू, सेम कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी और इसको हम आई प्लस प्लस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम एक जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं ए आर आर ऑफ आई, और उसके अंदर हम इनिशियली क्या प्लेस कर देंगे, इनिशियली हम इसमें 0 प्लेस कर देंगे।
अच्छा, ये करने से क्या होगा? ये करने से भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इस एरे में तमाम नंबर्स पे, वैसे ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आउटपुट देखने में आसानी हो जाएगी कि जब एरे 0 0 रिप्रेजेंट कर रही होगी, इट मीन्स कि हमारे पास कोई एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हम ये कर सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल। आप ये नहीं भी करेंगे तो आपकी ये एरे हमारे पास रिप्रेजेंटिंग टू नथिंग नथिंग के हिसाब से ये काम करेगी। अच्छा जी, तो अब जरा हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। हमने पब्लिक भी डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर भी अपना डिफाइन कर दिया है। अब हम अपने चलते हैं फंक्शंस की जानिब। अब चूंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ फंक्शंस की बात की है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि हमारे पास जो फंक्शन है और इज एम्प्टी और इज फुल, इनकी हमारे पास डेफिनेशंस हमने देखनी थी पहले कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। अब जरा इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका कोड जो है वो काम करेगा। हम एक फंक्शन मेथड लिखते हैं इज एम्प्टी का, और उसकी रिटर्न टाइप हम, अच्छा चूंकि बूल आप जानते हैं ये यूज होता है बूलियन के लिए। इज एम्प्टी, और डेफिनेटली इसके आर्गुमेंट हमारे पास नहीं होंगे, और इसके अंदर हम की डेफिनेशन देख लेते हैं। बूल मीन ये हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन हमारे पास इसके अंदर फॉल्स होगी। अच्छा, इफ के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर हम कहते हैं इफ फ्रंट, भी थोड़ी देर पहले हमने इसका कोड देखा था, फ्रंट इज डबल इक्वल टू -1, और इसके साथ हम n% साइन यूज करेंगे, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास ट्रू रहेंगी देन ये रिटर्न ट्रू करेगा। रियर इक्वल टू -1 मीन्स के इफ front is representing to nothing and rear is representing to nothing, तो this statement, this function holds true। ये हमारे पास फंक्शन जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा जब फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 रहेगी। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हम रिटर्न कर दें, ट्रू रिटर्न कर दें। तो इसमें अब हम सॉरी इधर वापस आते हैं। तो हम रियर इक्वल टू, सॉरी रिटर्न हम कर देंगे फॉल्स। अच्छा जी, तो रिटर्न हम कर देंगे ट्रू, सॉरी, और उसके बाद हम एल्स में हम कहते हैं रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एल्स हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ा सा इसके सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ेगा, सेमीकोलंस, ताकि हम सिंटैक्स एरर से भी साथ साथ बच सकें। तो ये हमने अपना एक फंक्शन कंप्लीट, मेथड कंप्लीट कर लिया है इस एम्प्टी का। तो इसको जरा दोबारा देख लेते हैं। हमने इसमें ये कहा है कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 और रियर की वैल्यू -1 रहेगी, यानी कि फ्रंट और रियर किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे, मींस कि हमारी जो एरे होगी वो फॉल्स होगी, सॉरी एम्प्टी होगी। एल्स में हम कहते हैं ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब ये हमारे पास कोई भी एक कंडीशंस अगर हमारे पास ट्रू नहीं है, मींस के रियर कहीं भी मौजूद है या फ्रंट अदर देन -1 है, तो इट मींस कि हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी है जो कि उस एरे के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम इज फुल भी देख लेते हैं, इज फुल फंक्शंस भी देख लेते हैं कि हाउ दिस फंक्शन विल वर्क। ई ब्रैकेट हमारे पास एट दी एंड यहाँ पर होगी। सो इसके अंदर अब हम एक और बूलियन फंक्शन लिख रहे हैं इस फुल का। अच्छा, इस फुल के सिमेंटिक्स अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। इसमें हम कहेंगे अगर हमारे पास रियर की वैल्यू 4 पे पहुंच चुकी है, रियर इक्वल टू 4, रियर की वैल्यू 4 के बराबर है, तो हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें अभी हम कहना ये चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि फर्ज करें अगर हमारे पास ये एक एरे है,
जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। अ, और उसमें जब फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा तो रियर हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे होगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट नंबर स्टोर हुआ है तो रियर जो है वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। अच्छा, नंबर स्टोर करते 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 जब रियर यहाँ पर आ जाएगा तो रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा? हम वो 4 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। मीन्स के जब रियर 4 पे है, इट मीन्स के ये अरे हमारे पास क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि इफ रियर इज डबल इक्वल टू 4, जब रियर की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, देन हम कहेंगे कि हमारे पास ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, तो हमने ये कंडीशन इसमें लिख ली और एक्सप्लेन भी हमने कर लिया कि ये कैसे काम करेगा। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अच्छा, एल्स, हम एल्स पार्ट में हम चलते हैं और हम कह देंगे रिटर्न फॉल्स। तो ये रिटर्न फॉल्स को रिटर्न कर देगा हमें, ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा ये। अच्छा, ये हमने सिमेंटिक देख लिए इसके। इज फुल के भी, इज एम्प्टी भी हमने कंप्लीट कर लिया और इज फुल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने, दैट इज एन क्यू। एन क्यू हम फंक्शन देखेंगे कि हाउ द एन क्यू फंक्शन। अच्छा, इसकी ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, दैट्स वाई इसको हम वॉइड टाइप कह देंगे। एन क्यू यू, ये जो भी स्पेलिंग है आप इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ताकि एवरी टाइम फिर हम यही एन क्यू यूज करेंगे। अब ये आर्गुमेंट में एक वैल लेगा जो उसको मेन से एज ए आर्गुमेंट मिलेगी वैल्यू। ठीक है, और इसके अब सिमेंटिक्स हम देख लेते हैं कि इसके सिमेंटिक्स में हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर इज फुल ट्रू है तो हमने एन क्यू करना है एक नंबर, लेकिन हम एन क्यू नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास क्यू ऑलरेडी फुल है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यू फुल तो नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर इज फुल को एग्जीक्यूट करेंगे कि इफ, और इसके अंदर हम लिखेंगे इस फुल कॉल करेंगे, और अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा, इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स के हमारे पास एरे फुल है। इसका सिंटेक्स का थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि आपने इसको, ये इसके, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं ये इसके लिए इस फुल के फंक्शन के लिए यूज हो रही हैं, और ये इफ की ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स हैं। और इसके अंदर हम इसके जो सिमेंटिक्स हैं, इसके आर्गुमेंट की वैल्यू देख लेते हैं कि हम क्या देंगे अब। डेफिनेटली अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस, हम इसमें कहेंगे सी आउट क्यू इज फुल। बट कहते हैं, हम कहते हैं क्यू इज फुल, और यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको। अच्छा, और रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम क्या हो जाएंगे? रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न कर देंगे इसको। अच्छा, ये अगर एक कंडीशन ये ट्रू है तो ठीक है, ये हम क्यू इज फुल को आउटपुट कर देंगे। अच्छा, सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। अम, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, देन हम इसका एल्स इफ में चलते हैं। एल्स इफ, और एल्स इफ में अब हम इज एम्प्टी चेक कर लेते हैं। इज एम्प्टी। अच्छा, ये इज एम्प्टी क्यों कर रहे हैं, इसको भी जरा थोड़ी देर के बाद चेक, इसकी वजह देख लेते हैं कि ये हम क्यों चेक कर रहे हैं इज एम्प्टी। बिकॉज हमारे पास अगर एम्प्टी है तो रियर की वैल्यू -1 पे होंगी, रियर और फ्रंट की वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि चूंकि हम एनक्यू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले रियर और फ्रंट को हम 0 पे लेके आए। देखिए, हमने जब एम्प्टी के अंदर वैल्यूज क्या रखी हुई थी इसकी, -1 रखी हुई थी। तो हम चाहते हैं कि अगर इज एम्प्टी ट्रू है तो हम इनकी वैल्यूज को, फ्रंट और रियर की वैल्यू को क्या कर दें? 0 पे ले आए। तो इसके अंदर हम इसके सिमेंटिक में चलते हैं, और इसमें अब हम रियर को और फ्रंट को, रियर इक्वल टू 0, फ्रंट इक्वल टू 0, ताकि ये पॉइंटर -1 से किस पे आ जाए? ये 0 पे आ जाए। -1 से हम इसको 0 पे लाना चाह रहे हैं।
और उसके बाद इसी के अंदर हमारी एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और वो क्या, ए आर, हमारे पास जो एरे है उसके रियर इंडेक्स में, क्योंकि जितनी दफा भी हम ऐड करेंगे हम रियर में ऐड करेंगे, तो हम कहेंगे रियर में वो वैल ऐड हो जाए। वो वैल कहाँ से मिल रही है, वो वैल हमें एज ए आर्गुमेंट मेन से मिलेगी। वो वैल्यू हम जीरो इंडेक्स पर जाकर इसको एरे के जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि रियर की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है जीरो, तो हम उसको वैल्यू को वहां पर स्टोर कर देंगे। अच्छा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास अरे एम्प्टी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या होगी। इसके बाद हम उसके एल्स पार्ट में आ जाते हैं, मींस के कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है और हम एनक्यू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जस्ट एल्स में लिखेंगे, और एल्स में हम रियर को पहले प्लस प्लस करेंगे। रियर को प्लस प्लस करने के बाद हम वही स्टेटमेंट ये लिख देंगे, ए आर ऑफ रियर इक्वल टू वैल। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो सेम स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने एनक्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। इसको जरा क्विकली रिव्यू कर लें। एनक्यू के अंदर हमने एक आर्गुमेंट वैल ली है जो मेन से हमें दी जाएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास इज फुल ट्रू तो नहीं है, बिकॉज एनक्यू ऑपरेशन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए अगर इज फुल ट्रू है। तो अगर इज फुल ट्रू है तो क्यू इज फुल का एक मैसेज मिलने के बाद हम रिटर्न कर देंगे। और सेकंड पे हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास क्यू एम्प्टी तो नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है और हम एन क्यू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले रियर को जो पॉइंट कर रहे हैं, रियर और फ्रंट जो -1 और -1 को पॉइंट कर रहे हैं, हम चाहेंगे उनको पहले हम जीरो जीरो इंडेक्स पे लेके आए, और ए आर ऑफ रियर यानी कि जीरो इंडेक्स पे हम वो वैल्यू स्टोर कर दें। अच्छा, अगर इज एम्प्टी नहीं, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट्स पहले पड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। हम एल्स पे आएंगे। एल्स में सिंपली हम रियर को प्लस प्लस करेंगे, यानी कि रियर को हम उस सेल पे लेके आएंगे, उस इंडेक्स पे लेके आएंगे जहां पर हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट हो गया एनक्यू का। अब हम देखते हैं कि हाउ द डी क्यू ऑपरेशन विल एग्जीक्यूटेड, कि डी क्यू ऑपरेशन हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा। चलिए, तो सो तो अभी हमने इसको एनक्यू भी कंप्लीट कर लिया है और डी क्यू भी, एनक्यू हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम डी क्यू की जानब आते हैं कि डी क्यू किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर अब हम डी क्यू के सिमेंटिक्स लिखेंगे। हमारे पास कोई भी इंटीजर है जिसको हमने डी क्यू करना है, तो डी क्यू का हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा। इसके रिटर्न टाइप, इसके आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं देंगे हम, बिकॉज के डी क्यू कहाँ से होना है, डी क्यू फ्रंट से होना है। सो तो इसका पहला हमने जो देखना है, सबसे पहले कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने ये देखना है कि अगर तो क्यू हमारे पास एम्प्टी है तो डी क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इनिशियली एक वेरिएबल लेकर, कोई भी वेरिएबल एक्स लेकर, और उसको हम जीरो से इनिशियलाइज, ताकि हम उसको रिटर्न वही जीरो कर देंगे जब ये हमारे पास कंडीशन या हमारे पास क्यू एम्प्टी होगी। तो इसके बाद हम इफ के साथ इज एम्प्टी को कॉल करते हैं, और इस एम्प्टी के साथ हम इसकी, अगर तो ये रिटर्न ट्रू करता है, यानी कि इज एम्प्टी ट्रू है, तो हम क्या करना चाहेंगे इसमें, वी वांट के सी आउट कर दें क्या क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, और यहां से हम रिटर्न हो जाएंगे। और रिटर्न क्या कर देंगे, एक्स को, यानी कि जीरो को रिटर्न कर देंगे। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर डी क्यू नहीं हुआ, तो क्या रिटर्न हो गया, जीरो रिटर्न हो गया। अब हम जाएंगे इसके एल्स इफ की जानब। अब हम इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं कि एल्स इफ हमारा क्या काम करेगा।
अच्छा, इफ के साथ हमने यहाँ पर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स ऐड कर लें ताकि ये एरर हमें ना दे। वैसे एरर हम एंड पे भी चेक करेंगे, बट ये साथ साथ अगर आप ये कर लें तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इसके एल्स इफ की जानब। एल्स इफ में अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर रियर इक्वल टू फ्रंट है तो। ये रियर इक्वल टू फ्रंट का मतलब क्या है, पहले जरा इसको मैं लिख लूं। एल्स इफ रियर इक्वल टू फ्रंट। अच्छा जी, तो इसमें हम उस नंबर को, रियल इक्वल टू फ्रंट का मतलब है कि अगर हमारे पास एक एरे है और जितने एलिमेंट्स हमने अभी, एक एलिमेंट हमने ऐड किया है, तो जब एक एलिमेंट हमने ऐड किया तो रियर और फ्रंट इक्वल टू दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रियर भी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और फ्रंट भी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम ये चाहेंगे उस फ्रंट के नंबर को निकाल के या उस रियर के नंबर को निकाल के हम एक वेरिएबल एक्स में रख दें और उस एरे को क्या कर दें, एम्प्टी कर दें। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट वी वांट टू डू हियर। कि फर्ज करें हमारे पास ये अरे है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये नहीं कि ये 5 एलिमेंट पड़ा हुआ है, बाकी एम्प्टी है हमारे पास अरे। तो फ्रंट भी इस जीरो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रियर भी इसको रिप्रेजेंट, दोनों यहीं पर ही हैं। तो जब ये डी क्यू हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम चाहेंगे फ्रंट बी -1 हो जाए और रियर बी -1, यानी कि ये क्यू क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इज एम्प्टी कॉल हो, और इज एम्प्टी ट्रू का मतलब ये होता है कि हमारे पास फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यूज क्या है, -1। दैट्स वाई हम इसको -1 करेंगे। अच्छा, होपफुली कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके सिमेंटिक में देखते हैं कि इफ एल्स एल्स इफ में हम कह रहे हैं रियर इज डबल इक्वल टू फ्रंट, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि एक्स को इक्वल टू, यानी कि हम डी क्यू करने जा रहे हैं किसको, फ्रंट एलिमेंट को। तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू ए आर, रियर कर लें क्योंकि रियर और फ्रंट की वैल्यू एक है, तो हम इसको रियर कर लेंगे। रियर इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए आर ऑफ रियर। और उसके बाद चूंकि हम उसकी वैल्यू एक्स में स्टोर कर रहे हैं रियर की वैल्यू को, तो रियर को भी -1 कर देंगे और फ्रंट को भी -1 कर देंगे। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। सो फ्रंट और रियर को -1 करके वो जो हमने नंबर अभी रिमूव किया है उसको हम रिटर्न कर देंगे एक्स को। और अगर ऐसा नहीं है, मींस के हमारे पास एक से ज्यादा नंबर हैं जो पड़े हुए हैं और हमने फर्स्ट को सिर्फ डीक्यू करना है, तो सिंपली एल्स में जाकर एल्स पार्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे और एल्स में हम लिख देंगे सी आउट। और पहले सी आउट कर देंगे इसको, और सी आउट करने से हम एक मैसेज बना लेते हैं यहाँ पर, फ्रंट इज वैल्यू इज, और यहाँ पर हम फ्रंट, ताकि वो प्रिंट कर दे हमें फ्रंट को जो हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद हम नेक्स्ट में इसके फौरन नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, उस फ्रंट को हम एक्स वेरिएबल में डाल देंगे, यानी कि ए आर आर ऑफ फ्रंट हम उसमें कह देंगे। और ये यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जो फ्रंट की वैल्यू है वो एक्स में चले जाएगी और फ्रंट को हम क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे, यानी कि ए आर आर फ्रंट। अच्छा, ये हमने 0 क्यों किया है, इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं आपको। इनिशियली हमने तमाम मेंबर्स एरे के 0 रखे हुए हैं, तो जिसको हम डी क्यू कर रहे हैं उसको बाद में हम
उस एलिमेंट को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्ज करें अगर हमारे पास जीरो इंडेक्स पे कोई नंबर पड़ा हुआ था, जब वो डी क्यू होगा तो हम चाहते हैं कि वहां पर जीरो आ जाए। तो हमने फ्रंट एलिमेंट को एक्स में रखा और उसी फ्रंट इंडेक्स को हमने जीरो कह दिया, और उसके बाद फ्रंट को हमने मूव करके आगे लेके जाना है। यानी कि फ्रंट अगर जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था या वन को पॉइंट कर रहा था, अब वो पॉइंट करेगा टू को, यानी कि फ्रंट प्लस प्लस हम कर देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे और इस तरीके से रिटर्न कर देंगे वो नंबर जिसको हमने डीक्यू किया। रिटर्न कर देंगे वो नंबर जिसको अभी हमने डीक्यू किया। तो यहां तक अभी तक हमने जो ऑपरेशंस अपने एग्जीक्यूट किए हैं, तीन कंडीशंस डीक्यू में लगाई। और सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर क्यू एम्प्टी है तो डी क्यू नहीं होगा और क्यू इज एम्प्टी का मैसेज आ जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट है और वही डी क्यू करना है तो उसको उठाकर, और ये कैसे चेक होगा, रियर और फ्रंट की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब है एक ही एलिमेंट हमारे पास क्यू के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम उस एलिमेंट को एक्स वेरिएबल में रख के उसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि रियर और माइनस, और रियर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू दोनों को -1 कर देंगे और एक्स को हम रिटर्न कर देंगे। और एल्स में अगर हमारे पास फ्रंट इक्वल टू रियर नहीं है, यानी कि फ्रंट कहीं और किसी और इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और रियर किसी और इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें उस इंडेक्स नंबर को जिसको फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू को उठा के एक्स में रखने के बाद उसको जीरो कर देंगे, यानी कि उस इंडेक्स की वैल्यू को जीरो कर देंगे और फ्रंट पॉइंटर को आगे नेक्स्ट पे ले जाएंगे, और वो जो नंबर आपने डी क्यू किया उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया सिमेंटिक किसके, डी क्यू के। ये हमारे पास चूंकि लास्ट है, इसको हम सेमीकोलन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका DQ भी कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास इसका एल्स पार्ट और DQ हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम एक और फंक्शन यहाँ पर लिखना चाहेंगे जो कि रिकॉर्ड रखेगा किस चीज का, जो बताएगा हमें कि करंटली हमारे पास इस वक्त कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं। यानी कि उन एलिमेंट्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम एक फॉर लूप की मदद से उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्यू के अंदर पड़े होंगे। तो उसके लिए हमें एक डिस्प्ले का एक फंक्शन या आउटपुट का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले, और उसकी भी हम टाइप आर्गुमेंट, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद हम इसका सिमेंटिक देखते हैं कि इसके सिमेंटिक में हम क्या लिखेंगे। अच्छा, उसमें हम सबसे पहले एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, द एलिमेंट्स, इसमें हम कहते हैं द ऑफ एरेज आर, ये हमारे पास आ जाएगा मैसेज। और यहाँ पर हम इसको हैंडल कर दें तो ठीक है, करना चाहें आप इसको। और उसके बाद वो एलिमेंट्स कौन से होंगे उनको हम एक फॉर लूप की मदद से दिखाएंगे। फॉर इंट I is equal to 0, I is less than equal to 4, या लेस देन इक्वल टू 4 कर लें या लेस देन 5 कर लें, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे प्रिंट करना चाह रहे हैं। और आई प्लस प्लस कर देंगे इसको हम, और इसके अंदर हम एक सी आउट स्टेटमेंट चला देंगे। क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स लगाना जरूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, और इसको बगैर ब्रैकेट्स के भी, अगर मल्टीपल फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होती देन आप इसका ब्लॉक लिखते। तो ए आर ऑफ आई, और इसके साथ हम इसको क्लोज कर देंगे, सी आउट ए आर ऑफ आई। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन हो गया कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद हम किसी तरीके से ये भी रिकॉर्ड रखना चाहेंगे कि करंटली हमारे पास इस वक्त कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। कि आप उसको फर्ज करें, आप एन क्यू करते हैं और डी क्यू करते हैं,
आप उसमें रिकॉर्ड बचाते हैं कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो आप उसके लिए एक काउंट का फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन चलें बहरहाल हम ऐसे करते हैं, मेन के अंदर आते हैं और मेन में हम एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हम क्यू का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो क्यू है उसका एक क्यू के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके बाद हम उसको कॉल करते हैं, एन क्यू को कॉल करते हैं इन इसके अंदर क्यू वन डॉट क्यू क्यू डॉट एन क्यू। स्पेलिंग जरा चेक कर लेते हैं, हमने एन क्यू ई एन क्यू यू ई, ताकि हाँ जी ई एन क्यू यू ठीक है। तो हम इसमें एन क्यू कॉल करते हैं और इसमें आर्गुमेंट में हम 7 वैल्यू डालते हैं और क्यू को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा पहले इसको सिंपली ये चला कर देखते हैं, एरर्स भी देख लेंगे, कोई एरर्स तो मौजूद नहीं है इसमें। और देन हम इसको ये दो ऑपरेशंस पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, उसको सेव कर लेते हैं हम किसी नेम से, QUEUE प्रोग्राम। ठीक है, ये हमने इसको, अच्छा इसमें कुछ एरर्स अभी मौजूद हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अम, वो कह रहा है इसमें हमारे पास आई थिंक ये डबल इक्वल साइन हम यूज करेंगे, ये सिंटैक्स एरर था इसके अंदर। देन हम इसको नेक्स्ट एरर्स के लिए देखते हैं। अच्छा इसका हम रिटर्न, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, सॉरी, रिटर्न ट्रू। ओके, मजीद इसके एरर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या एरर्स मौजूद हैं। अच्छा यहाँ पर भी हमने एरर्स काफी आए हुए हैं इसमें। ये रिटर्न फॉल्स, रिटर्न बाकी ठीक है, बाकी मजीद देख लेते हैं इसमें। अच्छा हाँ सर, इसमें हमने सॉरी इसका सेमी कॉलन ऐड नहीं किया था, दैट्स वाई ये एक एरर आ रहा था इसके अंदर। सो ये अब हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी आउटपुट आती है। अच्छा इसमें आपने देखा कि जो आउटपुट आ रही है हमारे पास वो 7 0 0 0 आ रही है, बिकॉज मैंने एक एनक्यू ऑपरेशन किया था और साथ मैंने डिस्प्ले का इसमें मेथड यूज कर लिया था, डिस्प्ले को कॉल किया था ताकि वो डिस्प्ले कर दे तमाम एलिमेंट्स को। अच्छा अभी चूंकि मैंने अभी एक एनक्यू किया है, तो सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा, बाकी वो जीरो कर रहा है। अच्छा मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट करता हूँ, और जस्ट इनकी वैल्यूज मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसको हम कंपाइल करके और रन करते हैं। अब देखेंगे हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो आपने देखा कि 7 8 9 और 11 और उसके बाद जीरो। जरा देखिएगा, मेरे पास जो पहला नंबर स्टोर था वो 7 स्टोर था, फिर 8 स्टोर था, फिर 9 है, फिर 11, अब एक स्पेस एम्प्टी है, तो हमारे पास लास्ट पे वो जीरो को शो कर रहा है। अच्छा अब मैं एक और एनक्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता हूं और डिस्प्ले मेथड में दोबारा, ये लिखा हुआ है हमारे पास, मैं एक और नंबर इसमें, फर्ज करें वो नंबर है, चलें 3 है वो नंबर, और देन हम इसको रन करते हैं।
नाउ यू कैन सी कि हमारे पास वो सारे नंबर जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, 7 8 9 11, 7 8 9 11 और 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ऐड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो ऐड होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ पर एक नंबर 4 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि क्या हमारे पास मैसेज आता है स्क्रीन पर। तो उसने कहते क्यू इज फुल। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि वो एक लाइन में इसलिए शो कर रहा है कि हमने एंड एल स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। तो एंड एल स्टेटमेंट क्यू इज फुल के बाद हम एंड एल लगा दें तो अम, फिर ये इस तरीके से वो हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो आपने देखा, जैसे ही मैंने फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स नंबर ऐड करने की कोशिश की, छठा नंबर, क्योंकि एरे का साइज 5 था, तो उसने हमें एक एरर मैसेज दे दिया। वो बेसिकली एरर क्या है, उसने एक मैसेज दे दिया कि क्यू हमारे पास फुल हो चुकी है, और उसने 4 को ऐड नहीं किया। अब इसको दोबारा देख लें आप किस तरीके से। अब हम इस तरीके से डी क्यू को भी चला के देखते हैं कि डी क्यू हमारे पास किस तरीके देखें। उसने क्यू इज फुल कह दिया और एलिमेंट हमारे पास उसने वही शो किए हैं जितने एलिमेंट्स हमने इसमें स्टोर किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर डी क्यू करते हैं तो देखेंगे डी क्यू कौन सा एलिमेंट होगा। ऑब्जेक्ट की मदद से हम डी क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि अब डी क्यू किसको होना चाहिए असली तौर पर। तो डी क्यू होना चाहिए फ्रंट को। तो देखेंगे कि फ्रंट हमारे पास रिमूव होता है या नहीं होता। तो आपने देखा हमारे पास उसने फ्रंट को 0 कर दिया, जो 7 था पहले। क्योंकि उसके अंदर कोड के अंदर हमने ये चीज लिखी हुई थी, जैसे ही फ्रंट हमारे पास रिमूव होगा उस इंडेक्स को हम 0 कर देंगे। ये 0 करने का मकसद यही है कि हमें पता चल जाए कि वो रिमूव हो चुका है और वहां पर 0 आ चुका है। और देख सकते हैं यहाँ बाकी एलिमेंट्स हमारे पास 8 9 11 और 3 मौजूद है। तो आपने देखा कि हमारा एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, कोड को स्विच स्टेटमेंट लगाकर। और उसके अंदर हम केसेस बना सकते हैं कि अगर आप एन क्यू करना चाह रहे हैं तो आप 1 प्रेस करें, डी क्यू करना चाह रहे हैं तो 2 प्रेस करें। तो इसको फर्दर इस तरीके से अपडेट किया जा सकता है। होपफुली ये सारा कोड आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये कंप्लीट क्यू डेटा स्ट्रक्चर की मैंने इम्प्लीमेंटेशन इसमें दिखा दी है।